So what does the Warshall algorithm for finding the transitive closure find is whether there is a path from each node to all other nodes in the graph. So there is a loop. Okay, so a loop is given. Initially what we are able to compute, initially हम लोग क्या compute करते हैं, initially हमें एक adjacency matrix given है. Adjacency matrix को we will copy to the R0 matrix. I repeat, we are going to copy the adjacency matrix to the R0 matrix. Is it clear? What is adjacency matrix? Adjacency matrix is whether there is a direct edge between two nodes. I repeat, what is the adjacency matrix? Whether there is a direct edge between two nodes. After that, what will be the size of the matrix? If you have n nodes in your graph, the size of your matrix will be n into n. And in this algorithm, I represents the row number and j represents the column number and k represents the iterations. k क्या represent करता है? Iterations. अगर आपकी 4 nodes हैं a b c d, तो k will be iterating from 1 2 3 4. 1 means a, 2 means b, 3 means c, and 4 means d. So what is the loop? Outer loop is k is equals to 1 to n. Inner loop is I is equals to 1 to n and j is equal to 1 to n. As simple as it gets. Because there are 3 loops, it is easy to find out that the complexity of this algorithm is n cube. So what is the complexity of this algorithm? The complexity of this algorithm is n cube. For k is equals to 1 to n, for I equals to 1 to n, for j is equals to 1 to n. And then there is only a single statement that we have already studied so far. And that is when we want to find, जब हमें I, j element की value को find out करना है for the matrix R के, तो हम लोग कौन से मैट्रिक्स को रेफर करेंगे? हम लोग रेफर करेंगे R के -1 को. इसका मतलब क्या है? अब हम R1 बना रहे हैं तो हम किसको रेफर करेंगे? R0 को. जब हम R2 बनाएंगे तो हम लोग रेफर करेंगे R1 को. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R k ऑफ ij? हम रेफर करेंगे R ऑफ k -1 को. तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि वेदर द वैल्यू ऑफ R k -1 of ij is equal to 1, or we will check whether the value of rk -1 of ik and kj is equals to 1. या तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए या इन दोनों की वैल्यू 1 होनी चाहिए. अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, देन द फाइनल वैल्यू ऑफ आर के आई जे विल बी 1. ये मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूं इन द लास्ट लेक्चर, एंड दैट लेक्चर इज अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप कभी भी उसको देख सकते हैं. नाउ वी मूव टुवर्ड्स द वॉर्शल्स एल्गोरिथम फॉर फाइंडिंग द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल नोड्स. तो वॉर्शल ने ही ये एल्गोरिथम दिया है ट्रांजिटिव क्लोजर का, और वॉर्शल ने ही एल्गोरिथम दिया है आपका फाइंडिंग द पाथ बिटवीन ऑल नोड्स. और इंटरेस्टिंगली क्या है, द एल्गोरिथम स्टेज द सेम. द ओनली डिफरेंस इज जहां पर हम 1 and 0 लिख रहे हैं, 1 means there exists a path
and 0 means there is no path. This will be replaced by two other values. One will be replaced by the cost. पाथ एग्जिस्ट करता है वो तो हमें ट्रांसिटिव ने बता दिया, लेकिन उसकी कॉस्ट कितनी है वो कौन बताएगा? 1 की जगह रिप्लेस करेंगे कॉस्ट के साथ. एंड 0 विल बी रिप्लेस्ड बाय इंफिनिटी. इंफिनिटी मींस नो पाथ. बिकॉज वी वांट टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ, इसीलिए 0 इज डिफाइंड एज इंफिनिटी, सो दैट infinity should always be greater than any path that exists. तो जैसा मैंने आपको बताया है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, that the algorithm for transitive closure is same as algorithm for your all path algorithm by Warshall. सिर्फ डिफरेंस इतना है that in place of 1 and 0 we are going to use cost and infinity. तो अब उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं. तो लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल. तो एग्जांपल ये है कि लेट अस सपोज वी हैव अ ग्राफ लाइक दिस, A, B and C. We have an edge from A to B. We have an edge from B to C, and we have an edge from C to B. Okay, and then we have an edge from C to A. What is the cost of edge from A to B is 5. Then we have an edge from B to C. Let's say the cost is 5. C to B the cost is 6 and C to A is cost is 4. अब हम इसका adjacency matrix बनाएं. So adjacency matrix will be a 3 into 3 matrix. तो अब हम एक 3 into 3 मैट्रिक्स बनाएंगे. This is representing A, B and C. This is also representing A, B and C. Is there any path from A to A? Is there any path from A to B? Yes. Is there any path from A to C? No. So infinity. Okay. So is there any अभी adjacency matrix में अभी तक हम 0 ही लिखेंगे, अभी हम 0 ही लिखेंगे, इसको infinity में convert करें. तो is there any path from B to A? No. Is there any path from B to C? Yes. Is there any path B to A is there is no path. B to B there is no edge, and B to C there is an edge 5. C to A, yes, 4. C to B, yes, 6. C to C is 0. This is adjacency matrix. आप देख सकते हैं कि अगर मैं इसको पिछली एल्गोरिदम जो कि ट्रांजिटिव क्लोजर था, उसमें कॉस्ट की जगह हम लोग क्या लिखते थे? कॉस्ट की जगह हम लोग 1 लिखते थे. हम कॉस्ट नहीं लिखते थे, हम 1 लिखते थे. लेकिन जब हम लोग वॉर्शल एल्गोरिदम फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ को करेंगे तो हम लोग कॉस्ट लिखेंगे और 1 नहीं लिखेंगे. तो ये आपका यहाँ पर आ गया. नाउ वी विल कन्वर्ट दिस इनटू Q0. अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे Q0 में. हम पिछली एल्गोरिदम में क्या करते थे? यहाँ पर लिखा हुआ है, हम लोग सिंपली एज इट इज कॉपी कर लेते हैं R ऑफ 0 में. एडजेसेंसी मैट्रिक्स को एज इट इज कॉपी करते थे R ऑफ 0 में, लेकिन यहां पर हम लोग एज इट इज ही कॉपी नहीं करेंगे. इसमें जो नॉन जीरो वैल्यूज हैं वो तो एज इट इज कॉपी हो जाएगी, यानी 5, 5, 4 एंड 6. लेकिन इसके अलावा जो जीरो वैल्यूज हैं दे विल बी कॉपीड एज इंफिनिटी. They will be copied as infinity, something like this. So we are able to find Q0, which is equivalent to R of 0. I hope सिर्फ इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब हम लोग शॉर्टेस्ट पाथ, ऑल नोड्स पाथ फाइंड आउट करेंगे तो हम लोग 0 की जगह इंफिनिटी. अब दूसरा डिफरेंस कहां पर है? दूसरा डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ इस स्टेटमेंट में आएगा, सिर्फ इस स्टेटमेंट में आएगा.
यानी k इज इक्वल टू 1 to n ऐसा ही रहेगा, i इज इक्वल टू 1 to n ऐसा ही रहेगा, j इज इक्वल टू 1 to n ऐसा ही रहेगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी n क्यूब ही रहेगी. द ओनली डिफरेंस विल बी हियर. So what is that difference? Please note that down. What will be the value of q of k of I, j? क्या वैल्यू होगी? The value will be minimum. यहां पर क्या था? मिनिमम नहीं था, यहां पर था कि क्या ये 1 है और या ये दोनों 1 है. लेकिन यहां पर कॉस्ट की बात चल रही है तो यहां पर मिनिमम फंक्शन लगेगा. क्या ये इसकी वैल्यू और इन दोनों की वैल्यू का सम, या तो ये वैल्यू या इन दो वैल्यूज का सम, इन दोनों में से जो भी मिनिमम है हम लोग उसको कंसिडर करेंगे. इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला इज गिवन इन द नेक्स्ट स्लाइड, प्लस हाउ टू सॉल्व इट with the help of an example is also given. I, like in my previous lecture, मैं ये expect नहीं कर रहा हूँ कि आपको ये चीज अभी क्लियर हो गई होगी. तो let's see an example and the statement of the same in the next slide. So हम लोग कर क्या रहे हैं? सबसे पहले हमने डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिथम की, जिसमें सिर्फ वन नोड टू अनदर नोड का पाथ था. फिर हमने ट्रांजिटिव क्लोजर किया, वेदर देयर एग्जिस्ट अ पाथ फ्रॉम ऑल नोड्स टू ऑल अदर नोड्स ऑफ द ग्राफ, हमने वो किया. अब हम कर रहे हैं ऑल पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ, यानी हर नोड से हर दूसरी नोड का शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट कर रहे हैं. और इसके लिए एल्गोरिथम कौन सी यूज कर रहे हैं? वॉर्शल्स एल्गोरिथम. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं. ये चीज मैं स्टूडेंट्स आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूं, तो मैं इसको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस एल्गोरिदम में वैल्यूज कैसे रिप्रेजेंट की जाती हैं. ठीक है, तो अगर आप i इज इक्वल टू j है, यानी आप उसी नोड की बात कर रहे हैं जहां पर आप खड़े हैं, यानी आप 4 से 4 जाना चाहते हैं तो नेचुरली इट विल बी 0. अगर आप 4 से किसी और नोड की तरफ जाना चाहते हैं तो उसका अगर एज है, इफ द एज एग्जिस्ट, तो हम लोग उसका वेट वहां पर कॉपी करेंगे, एंड इफ द एज डज नॉट एग्जिस्ट तो हम लोग वहां पर इंफिनिटी रखेंगे. लेकिन हमारे एग्जाम्पल में हम लोग 0 को नहीं मानते हैं. अगर एज नहीं है तो हम लोग इस 0 की जगह भी इंफिनिटी ही नोट करेंगे. लेकिन अगर आप चाहें तो इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज 0, cost and infinity, but we will only consider the two values, either the cost if the edge exists, and if the edge does not exist we will take the infinity part. I hope it is clear. आपको ये चीज clear है. So this is the formula जिसकी मैं बात कर रहा था. अब ये फॉर्मूला यहाँ पर बहुत क्लियरली गिवन है, और मुझे पूरा यकीन है जब आपको ये नोट्स दे दूंगा आपको क्लियर हो जाएगा. अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की आई जे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की आई जे वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं फॉर द kth नोड, तो आप कौन सा मैट्रिक्स कंसीडर करेंगे? उससे पिछले वाला, दैट इज डी ऑफ -1. और मैंने आपको बताया था कि मिनिमम फंक्शन लगेगा. 2 वैल्यूज है, उसमें से किसकी वैल्यू मिनिमम है हम लोग सिर्फ वही नोट करेंगे. कौन सी 2 वैल्यूज है? या तो पिछले मैट्रिक्स की आई जे वैल्यू उठा लो, या पिछले मैट्रिक्स की आई के प्लस के जे उठा लो. इन 2 वैल्यूज में से, यानी एक ये वाली वैल्यू और एक ये दोनों का सम, इन दोनों में से जो भी वैल्यू मिनिमम होगी दैट वैल्यू विल बी कंसीडर्ड टू फिल द आई जे. आई होप दैट दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल. तो ये आपकी एल्गोरिदम है. एल्गोरिदम हम लोग ऑलरेडी कर लिया है. वॉर्शल एल्गोरिदम में मैंने बताया था कि हमारे पास 3 जो हैं वो आइटरेशंस लगेंगी. देयर विल बी 3 आइटरेशंस.
The first iteration is k of 1 to n, I of 1 to n, j of I to 1 to n. That is why the complexity is this. And then what we are going to do is we are simply going to compute the minimum. ठीक है, सिंपली मिनिमम कंप्यूट करना है और जो भी मिनिमम है उस मिनिमम को हमने असाइन यहाँ पर कर देना है. That is it. This prediction is not compulsory and there is no need to compute the prediction. Predict वाले को यूज करने की जरूरत नहीं है. Now we are moving towards the last topic of this discussion. That is an example to solve the shortest path from all nodes. I hope you all are there and concentrating, because now we come to the most important part. So please consider here. So please consider in here, there is a graph given and we are computing the W. That means the weighted graph for that. इसमें adjacency नहीं आएगा, इसमें weighted graph आएगा क्योंकि इसमें weights given है. तो कैसे? अगर आप ध्यान से देखेंगे कि आप A से कहां तक जा सकते हैं, आप A से B जा सकते हैं और आप A से C जा सकते हैं. A से A नहीं जा सकते 0, A से B जा सकते हैं 2, A से C जा सकते हैं 0, A से D नहीं जा सकते. अब आप देखिए आप B से कहां जा सकते हैं, आप B से सिर्फ C जा सकते हैं, बाकी सब 0 है और C के लिए 1 है. इसी तरह से आप पूरा का पूरा वेटेड मैट्रिक्स जो है वो कंप्यूट कर सकते हैं. आई होप इट इज क्लियर. Second thing is, once you compute the weighted graph, the step number 1 of the algorithm is कि you will copy that graph or copy that matrix into Q0. लेकिन कॉपी करते समय एक चीज का ध्यान रखना है, that 0 will be replaced by infinity. 0 will be replaced by infinity. तो आप देख सकते हैं कि जहां जहां पर भी 0 लिखा था, that has been replaced by infinity. So this is how we are able to compute the Q0. Now what we want to do is we want to compute Q1. How we compute the Q1? We can compute the Q1 by referring to the values of Q0. यानी Q1 को हम लोग compute कर सकते हैं, उसके लिए हमें Q0 की वैल्यूज को रेफर करना पड़ेगा. तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, Q1 के ij की वैल्यू क्या है? Q1 ऑफ ij की वैल्यू है मिनिमम, दो वैल्यूज के बीच का मिनिमम. कौन कौन सी दो वैल्यूज? एक है Q0 के ij और दूसरी वैल्यू क्या है? Q0 के ik प्लस Q0 के kj. तो इन दोनों में से जो भी मिनिमम वैल्यू है हम लोग उससे उसको फिल करेंगे. बहुत सारी कंप्यूटेशन है. क्या हम इस कंप्यूटेशन को कम कर सकते हैं? क्या हम अपना प्रेशर कम कर सकते हैं कि हमें इतनी ज्यादा कंप्यूटेशन ना करना पड़े? सो दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक. प्लीज फोकस ऑन दिस बिकॉज दिस इज गोइंग टू रिड्यूस योर एफर्ट. यहां पर आप देख सकते हैं कि Q1 कंप्यूट हुआ, फिर Q2 कंप्यूट हुआ, फिर Q3 कंप्यूट हुआ एंड फाइनली Q4 कंप्यूट हुआ. लेकिन हाउ टू रिड्यूस द वर्कलोड ये आप यहां पर देख सकते हैं. सो प्लीज फोकस हियर how the author has suggested a method by which we can reduce the you can say load. आपको पिछले ही लेक्चर में बताया था कि जब आप Q0 बनाते हैं तो आप 0th रो और 0th कॉलम को एज इट इज ही कॉपी कर लेते हैं, इसके अंदर चेंजेस नहीं आते. समझ गए बात को? तो जब हम Q1 कंप्यूट करेंगे तो हम कौन से रो को फिक्स फ्रीज कर देंगे? ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर देंगे. सिमिलरली Q2 के लिए सेकंड कॉलम सेकंड रो को फ्रीज कर देंगे. ये चेंज नहीं हो सकते हैं. तो चेंज क्या होंगे? बाकी के.
अब क्वेश्चन ये है कि मैंने मिनिमम निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, यहाँ पर भी इन्फिनिटी है, और यहाँ पर भी इन्फिनिटी है। अब इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी से कम हो ही नहीं सकता ना, इन्फिनिटी विल ऑलवेज स्टे द मैक्सिमम। अगर यहाँ पर इन्फिनिटी है तो इसका मतलब क्या है कि ये वाली रो को चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इट विल स्टे द सेम। यहाँ पर भी इन्फिनिटी है तो इसको भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इट विल स्टे द सेम। यहाँ पर इन्फिनिटी है तो ये वाली जो कॉलम है ये भी फिक्स रहेगी, इसको भी चेक करने का कोई फायदा नहीं है, इट विल स्टे द सेम। तो बचा कौन? बचे सिर्फ ये दो। आई रिपीट, बचा कौन? सिर्फ ये दो। अब हम इसके लिए वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो चलें इन दोनों के लिए वैल्यू कंप्यूट करते हैं। तो पिछली बार इन दोनों की वैल्यू कितनी है? एक की 4 है और एक की इन्फिनिटी है। तो कंप्यूट करते हैं, इसके लिए वैल्यू कंप्यूट करते हैं। इसकी पिछली वैल्यू कितनी है? 4। ओके, और दूसरी वैल्यू क्या है? दूसरी वैल्यू है 3 + 2। 3 + 2 कितना हो गया? 5। तो इन दोनों में से छोटा कौन है? 4, तो इट विल स्टे 4, कोई चेंज नहीं। नेक्स्ट वैल्यू कंप्यूट करें इसके लिए। तो इसकी पिछली वैल्यू कितनी है? इन्फिनिटी, तो मैं यहाँ पर इन्फिनिटी लिख देता हूँ। और इसकी दूसरी वैल्यू कितनी है? 3 + 3 विच इज 6। तो इन्फिनिटी छोटा है या 6? दैट मीन्स 6 छोटा है। तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वैल्यू चेंज हुई है, दैट इज 6। रेस्ट एवरीथिंग इज सेम। और हमने कितनी वैल्यूज चेक की? सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यूज चेक की। तो वापस चल के देखें कि क्या हमने जो किया वो सही है या गलत है। लेट्स गो बैक। So there you see. So there you see that only one value has changed. Can you see this? Only one value has changed. And which is that value? That value is 6. So this means we were correct. Now what we want is we want to compute Q2. तो देखें Q2 को कैसे कंप्यूट करना है, और हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्यूट करेंगे। तो थोड़ा सा फोकस, आई रिक्वेस्ट दैट ऑल स्टूडेंट्स फोकस ऑन दिस, बिकॉज वी विल ट्राई टू कंप्यूट दिस एज फास्ट एज पॉसिबल। तो Q1 से अब हमने Q2 कंप्यूट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे? Q1 के इसको फ्रीज कर लेते हैं और इसको फ्रीज कर लेते हैं, इजंट इट? इन दोनों को हमने फ्रीज कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि ये दोनों चेंज नहीं हो सकते। नाउ आप ध्यान से देखिए कि अब ये वाला जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी है, ये वैल्यू इन्फिनिटी है, यानी यहाँ पर तो कोई भी चेंज होने वाला नहीं है। ठीक है, अगला तो वैसे ही क्लोज किया हुआ है। अब ये वाला इन्फिनिटी है, इसका मतलब यहाँ पर भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। और हमारा दूसरा कौन सा था? दूसरा हमारा ये वाला है। तो इसमें से कौन सी वैल्यू इन्फिनिटी है? ये वाली इन्फिनिटी है, यानी यहाँ पर भी कोई चेंज होने वाला नहीं है। तो हमने मार्क कर लिया है कि कहाँ कहाँ पर चेंजेस नहीं हो सकते। तो चेंजेस कहाँ पर हो सकते हैं? सिर्फ यहाँ पर और यहाँ पर। तो कंप्यूट करते हैं, ठीक है। तो अब हमने करना क्या है? एक ये वाली कंप्यूट करनी है और एक ये वाली कंप्यूट करनी है। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले चेक करो कि यहाँ पर पिछली वैल्यू कितनी थी। यहाँ पर पिछली वैल्यू थी 3। यहाँ पर पिछली वैल्यू थी 3। मैं दोबारा से इसको क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको इट इज इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। एक ये हमने फ्रीज किया था और एक हमने ये फ्रीज किया था। तो यहाँ पर पिछली वैल्यू कितनी थी? 3। और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली दूसरी वैल्यूज कितनी है? 1 + 2 विच इज ऑल्सो 3। 3 और 3 में से 3 ही रहेगा, सो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज, सेम वैल्यू। अब हमने
यहां पर वैल्यू कंप्यूट करनी है। तो यहां पर वैल्यू कंप्यूट करने के लिए अब हम यहां पर पिछली वैल्यू कितनी थी 6, तो ये हमने नोट कर लिया 6। तो बाकी की दो वैल्यूज क्या हैं, 6 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 4 है और 6 के कॉरस्पॉन्डिंगली यहाँ पर 1 है। दैट मीन्स 4 + 1 = 5। So what is smaller? 5. As you can see that one change has been done. So this is how we are able to reduce the amount of work and able to compute the you can say shortest path, shortest cost for Q2. So should we do it for 3? We will only do it for 3. The rest you can from the notes you can do it for 4. So let us move towards Q3. How to compute the Q3? So there is Q3. Let us start. I hope everyone is focusing on this. जब हम Q3 को कंप्यूट करेंगे तो हम उसके लिए just wait. So let me just get this in the right direction. So there we are. So let us start. We are going to freeze this one and we are going to freeze this one. Now this one is infinity. That means इसमें और इसमें कोई change नहीं आ सकता है. This one is also infinity, यानी इसमें और इसमें कोई change नहीं आ सकता है. ठीक है. और इसके अलावा और कहीं पर भी इंफिनिटी नहीं है. यहाँ पर इंफिनिटी है लेकिन वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो कहाँ कहाँ पर चेंजेस आ सकते हैं? 3 जगह पर चेंजेस आ सकता है. एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर. विच मीन्स दिस एंड दिस. लेट अस कंप्यूट. तो इस पोजीशन पर पुरानी वैल्यू क्या है? इस पोजीशन पर पुरानी वैल्यू है इंफिनिटी. तो मैंने इंफिनिटी नोट कर दिया. और दूसरी वैल्यू चेक करते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंगली. यहां पर कितनी है 5 और इसके कॉरस्पॉन्डिंगली यहां पर कितनी है 3. दैट मीन्स 5 + 3 = 8 विच इज स्मॉलर देन इंफिनिटी. इसीलिए यहां पर 8 लिखा गया है. अब हम इसके लिए शॉर्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू कंप्यूट करेंगे. यहां पर क्या है, इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है इंफिनिटी. तो वो मैंने नोट कर लिया इंफिनिटी. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली कौन कौन सी वैल्यूज हैं? इसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक तो 5 है और एक 1 है. 5 + 1 = 6. तो हमने यहाँ पर 6 लिख लिया. अब इसके लिए वैल्यू ढूंढते हैं. इसकी पुरानी वैल्यू कितनी है इंफिनिटी. तो मैंने नोट कर लिया इंफिनिटी. अब इसके कॉरस्पॉन्डिंगली, इस इंफिनिटी के कॉरस्पॉन्डिंगली कौन सी दो वैल्यूज हैं? एक तो है ये वाला 5 एंड एक है ये वाला 5. 5 + 5 = 10. तो हमने निकाल लिया. So this is how we were able to compute the Q3, and using the same method we can compute the Q4 from Q3, which will be our final cost. So whatever we have drawn here, whatever you can see on the screen right now, is our final cost matrix. That is the minimum cost to move from one node to another. If I want to know कि मैं C से I want to go from node C to D, what will be the minimum cost? From C to D, the minimum cost is 5. If I want to go from A to C, what will be the minimum cost? The minimum cost will be 3. So I hope that it is clear to you. So that is the end of the topics that we have done so far, and we will revise what we have done. So let us revise the topics that we have done today. The first thing that we discussed was what is the definition of shortest path. The shortest path is the minimum cost between source and destination node.
So what is the first thing that we discussed? What is shortest path? So what is shortest path? The shortest path is the minimum cost between source and destination node. तो इसके अलावा हमने क्या किया आज? We discussed the simple greedy algorithm. Simple greedy algorithm में क्या होती है? Start from the edge with मिनिमम कॉस्ट. हम कहां से स्टार्ट करते हैं? उस एज से जिसकी मिनिमम कॉस्ट है. द सेकेंड नोड इज द नोड विद मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम द रिमेनिंग एजेस. तो हमने सबसे पहले क्या किया? सबसे पहले हमने मिनिमम कॉस्ट वाली एज को निकाला, फिर बची हुई एजेस में से मिनिमम कॉस्ट वाली एज को निकाला. इसी तरह से एक एक करके एजेस निकालते रहे और बस ये चेक करते रहे कि सोर्स टू डेस्टिनेशन का पाथ मिल गया कि नहीं. जब मिल गया तो हमने उसको शॉर्टेस्ट पाथ मान लिया. लेकिन आप मानकर चलिए दैट इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन. उससे छोटे सॉल्यूशन मिलने के चांसेस हैं. आफ्टर दैट व्हाट वी डिड वाज Dijkstra's algorithm. This is used only to find the shortest path. This is only used to find the shortest path between two nodes. यानी सिर्फ दो नोड्स के बीच में ही शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने के लिए ये बनाई जाती है. इसमें हम लोग सोर्स एज से स्टार्ट करते हैं जिसका डिस्टेंस 0 है. फिर धीरे धीरे नोड्स को फाइनलाइज्ड करते हैं, एक एक करके नोड्स को फाइनलाइज